the number of instances in the backend of load balancer, correct? Mhm. We need to edit. We have option to edit them. It's not mandatory. We can edit the existing load balancer, right? So it's up to us. It's up to our requirement. Means according to the requirement, like you establish your e-commerce website, and you are getting a much hits on your website. You are getting lots of requests on your website, and your existing servers are unable to reply them. So definitely, I'm going to proceed with the new domain controller. I'm going to proceed with the new web server, right? So yes, we are able to edit the existing load balancer. Means we can add new virtual machines or new web servers in the backend of load balancer, right? Yes, we just need to edit them, and once you click on the edit, it will give you the list of number of instances that you have already added, and it will also give you option to add a new instance. Clear? Okay, it's important. It's so important. We must need to practice them because I'm today's last day of our what we can say that the networking, because I'm going to complete the networking part, and also we'll start our compute related services. Right. So in the networking we have already discussed lots of things, but one of important point that we need to cover today, I'm talking about VPN and hybrid network environment. Right. I'll I'll send you because now we have a much data. Now we are able to understand about the types of questions. So no worry about it because अभी हमने स्टोरेज कंप्लीट किया एंड ऑलमोस्ट वी completed the part of networking. So ठीक है, थोड़ा सा मटेरियल हमारे पास है. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा मटेरियल अपने पास है. 30 to 35% और 40% मटेरियल हमने अपने पास कलेक्ट कर रखा है. नाउ वी नीड टू मूव आवर सेल्फ, क्योंकि जो अपकमिंग टॉपिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एंड वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि क्या होता है कंप्यूट में, क्या होता है मॉनिटरिंग में, हाउ वी कैन टेक द बैकअप. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कवर प्रॉपरली. बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगने वाला. ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था. या हम्म. 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 ओके 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 ओके. Definitely. No, no, no. Actually, we haven't completed the load balancer part. We haven't discussed about the properties of load balancer because the inbound and outbound. We just added a port number 80 की भाई जो भी हम वेब सर्विसेज अपने बैकएंड में रख रहे हैं वो 80 के थ्रू आउट हो जाएगी. बट वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द नेट क्या करता है इसमें, नेट का रूल क्या है, कि इस तरीके से नेट हमारा हेल्प करता है टू मैनेज अवर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल्स एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द what we can say that VPN. But I'm going to start with VPN. Why we need to start with VPN? Because you know that VPN will take up to 45 minutes to set up their infrastructure. ठीक है, मीन्स VPN प्रैक्टिकल में जो स्टेप यूज करते हैं जस्ट टेक 5 to 6 मिनट. बट एज्यूर अपनी तरफ से जो टाइम लेता है, मान लीजिए आपने कोई सर्विस परचेज की, अब वीएम की बात कर लेते हैं. आई डोंट थिंक वीएम बनाने में हमें 30 to 40 सेकेंड्स लगेंगे. फटाफट से नाम दिया, डिटेल डाली, नेक्स्ट 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 फिनिश. लेकिन जब हमारी एग्जीक्यूट होती है ना, उसमें हमारा 2 से 3 मिनट का टाइम जाता है. As it is, whenever we try to set up our whenever we try to set up our hybrid environment VPN, ठीक है, आप जो अपनी तरफ से स्टेप फॉलो करेंगे वो सिर्फ 5 से 7 मिनट का रहेगा. लेकिन एज्यूर क्या कहता है, उसको चीजों को सेटअप करने के लिए 40 से 45 मिनट का टाइम चाहिए. सो इसमें हम दोनों प्रैक्टिकल करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वीनेट एंड VPN.
राइट। उसको क्रिएट करके छोड़ देते हैं, 40 मिनट बाद जैसे ही रेडी हो जाता है हम आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा देंगे कि ये हमारा ऑन प्रोमाइसिस का विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम था और ये हमारा एज्यूर का सर्वर था, हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट किया ओनली बिकॉज ऑफ वीपीएन, बिकॉज आवर वीपीएन इज वर्किंग प्रॉपरली। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, ठीक है, तो उसको हम एक बार प्रोसीड करके छोड़ देते हैं एंड बैक टू द वीनेट पार्ट, बैक टू द एलबी पार्ट, लोड बैलेंसर पार्ट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फीचर्स विच आर अवेलेबल इन द लोड बैलेंसर सर्विसेज। ठीक है, cool. It's our responsibility. We must need to know about the concept of VPN. So according to the name, as per the name suggests, Azure VPN or any kind of VPN. In the Azure networking, our agenda to understand about the concept of configure Azure VPN. What do you think about VPN? Okay. Then we are able to access it. Okay. Okay. So let me help you to understand about the basic of VPN services. Like as this is our local office, and in the local office we already set up multiple servers, we already established multiple client computer, बहुत सारी devices हमारे ऑफिस में वर्क कर रही हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी परचेज सम रिसोर्सेज फ्रॉम एज्यूर एज वेल। एज्यूर पे हमने कुछ वीएम क्रिएट कर रखा है, एज्यूर पे हमने अपना सिक्वल सर्वर लगा रखा है, दिस इज माय डेटाबेस सर्वर। एज्यूर पोर्टल पे हमने अपना खुद का एवीडी एज्यूर सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज हमने इस्टेब्लिश कर रखी है। Now, I'm trying to connect with our on-premises resources. This is proper office, and in the office a number of resources are available. But this is a single PC. This is stand alone PC, right? और ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम। सो डेफिनेटली जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो डेफिनेटली जो आईएसपी है ना वो हमारा पर्सनल रहता है, हम पे कर रहे हैं अपने एयरटेल को, और यस जो कनेक्शन है वो हमारे नाम पे है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? और जो ऑफिस के रिसोर्सेज हैं या एज्योर के जो रिसोर्सेज हैं, एज्योर का आईएसपी अलग है, हमारा ऑन प्रोमाइसिस का आईएसपी अलग है, राइट? एंड यू नो दैट if you want to make a communication with the help of internet, I don't think we are able to make a connection with the help of private IP address. इस सिस्टम की जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, जो हमारे मशीन की प्राइवेट आईपी एड्रेस है, मे बी 192.168.1.10, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ माई on premises machine, and the SQL, the IP address of our MySQL machine, it's 172.16.1.25. This is the IP address of SQL. Using the internet, I don't think we are able to make a communication between each other. Is it possible? प्राइवेट आईपी से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीज़ें या दूसरे आईएसपी का कम्युनिकेशन हम सेटअप नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? राइट। बट डेफिनेटली हर एक क्लाइंट चाहेगा, हर एक कंपनी चाहेगी, ही नीड टू सेटअप देयर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो चाहता है कि जो बंदा घर से काम कर रहा है, अगर वो हमारे ऑफिस के रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, अगर वो हमारे ऑफिस के रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, सो ही आर सी must need to communicate with secure connection. I'm ready to give the access of our office resources, but उस बंदे को बहुत सारी ऑथोरिटी, बहुत सारे व्हाट वी कैन से दैट सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। इज दैट क्लियर? So VPN come into the picture.
And the VPN is categorized in two different parts. You can also consider it types of VPN, right? Just give me a moment, please. Uh, can you hear me? I'm so sorry. Actually, it's a festival season, so today I'm on fast. So that's why. No, no, no. It's a Dasera, Navratri. Not at I think at 8 o'clock, at 8:30. No, no, no food because you can take a water, you can drink, but वैसे खाना नहीं खा सकते. सिर्फ पानी, नारियल पानी, लाइक जूस वगैरह ले सकते हैं. मुझे 22 साल हो गए हैं. नहीं नहीं, मुझे मैं पिछले 22 साल से रख रहा हूँ. 22 था, नॉट नॉट 22 ईयर्स, 19 ईयर्स. 2004 से मैं स्टार्ट किया हूँ. दैट नहीं, वो तो फिर औरतों के लिए है ना डायरेक्टली. नहीं नहीं नहीं, इसमें सभी रखते हैं. इवन इवन मेरे कोलीग जो है 9 के 9 पूरे दिन रख रहे हैं. ओके, सो this is our on-premises office, and this is our a particular machine, or you can say that the individual computer. So the VPN is categorized in two different parts. One is site to site, and another is site to point. Point to site to site, vice versa, दोनों एक ही है. ठीक है. सो एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ साइट टू साइट, इसमें क्या होता है ना कि आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऑन प्रोमाइसिस के इंफ्रास्ट्रक्चर से अटैच करना चाहते हैं. एक सिंगल कनेक्शन के थ्रू आप जितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, जितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस अपने ऑन प्रोमाइसिस पे लगा रखे हैं पूरे ऑफिस में, एक ही कनेक्शन के थ्रू हर एक को कम्युनिकेशन ऑथराइज हो जाएगा. बट थिंक अबाउट, अगर हमारा वर्क फ्रॉम होम है, लाइक अदर पीपल आर वर्किंग फ्रॉम देयर ऑन होम, सो देयर होम, सो ये बंदा दूसरे लोकेशन पे है. ठीक है, ये बंदा इंडिया लोकेशन में अवेलेबल है, एंड दूसरा बंदा दुबई लोकेशन में अवेलेबल है, तीसरा बंदा यूएस लोकेशन में अवेलेबल है. और हर एक बंदा अपने सिस्टम को अपने खुद के आईएसपी से कनेक्टेड है, राइट. हर एक डिफरेंट लोकेशन में उनका खुद का आईएसपी होगा. सो पॉइंट इन द सेंस अ इंडिविजुअल कंप्यूटर. साइट मीन्स अ पर्टिकुलर ऑफिस, a particular infrastructure. Clear? We are able to set up two different types of VPN over Azure portal. And now let's talk about the prerequisite and infrastructure of VPN management. So what are the components that you need to purchase? What are the services that you need to purchase over Azure portal? Very first step, create VNet. I hope we are able to create VNet. And in the VNet, create टू सबनेट. एक वीनेट में कम से कम हमें 2 सबनेट क्रिएट करने होंगे. एंड नंबर थर्ड, क्रिएट वर्चुअल गेटवे. ये एज्योर पोर्टल पे, ये सारी सर्विसेज हमें एज्योर पे परफॉर्म करनी है. एज्योर
दोनों के लिए एप्लीकेबल है एज्योर पोर्टल पे। ये टास्क है एज्योर पोर्टल का है। ठीक है, these all the services that you need to purchase over Azure portal. Now let's talk about the on premises. हम यहाँ पे अपने पास, because we are not running any office and we don't have any firewall, क्योंकि बिना फायरवॉल के आप साइट टू साइट VPN नहीं बना पाएंगे। Without firewall we are unable to configure the site to site VPN. This is our local PC and ये अपना Azure का पोर्टल हो गया। and over Azure portal we created a VNet. In the VNet we need to create two subnet, subnet 1 and subnet 2, and the subnet 2 should be connected with virtual gateway like this, and then with the help of virtual gateway we are able to make communication. Azure का ISP अलग होगा, ऑन प्रोमाइसेस का ISP अलग होगा, Azure का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग होगा एंड ऑन प्रोमाइसेस का सर्विस प्रोवाइडर अलग होगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। ये साइट टू पॉइंट, हाँ पॉइंट टू साइट या साइट टू पॉइंट, साइट टू पॉइंट, ये साइट हो गया, ये अपना इंडिविजुअल मशीन यानी पॉइंट हो गया। हम साइट टू साइट क्यों नहीं कॉन्फ़िगर कर पाएंगे? बिकॉज वी डोंट हैव अ फायरवॉल। सिंपल। इफ यू वांट टू सेट अप द साइट टू साइट VPN यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द फायरवॉल, क्योंकि आपको सेटिंग जो है फायरवॉल पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर? ऑन प्रोमाइसेस, करेक्ट, राइट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बैक टू द पोर्टल। और डायरेक्टली हम पोर्टल पे क्या करते हैं, सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट द प्रीरिक्विजिट जो हमें एज्योर पोर्टल पे इस्तेमाल करना है। सो आई एम गोइंग टू ओपन आवर पोर्टल एंड प्रोसीड विद प्रैक्टिकल, बिकॉज इट विल टेक टाइम, मच टाइम। ये 30 से 35 मिनट का टाइम इसमें देना पड़ेगा हमें। गेटवे में, विनेट में तो उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट गेटवे में देना पड़ेगा। और हमें प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है लोड बैलेंसर के अंदर जो सर्विसेज अवेलेबल है, नेट गेटवे वगैरह, या नेट जो है नेट रोल, आउटबाउंड रोल, इनबाउंड रोल, उस पर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। दिस इज आवर Azure पोर्टल एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ VNet। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टास्क हमें VNet तैयार करना है। आई एम गोइंग टू ओपन Azure वर्चुअल नेटवर्क। दिस इज द VNet Azure network, and I'm going to proceed and create new VNet. You can choose any IP address, A class, B class, C class, कोई से भी क्लास की हम IP एड्रेस इस्तेमाल करने वाले हैं। AVD क्लास, yes I wanted to put my data in AVD class, AVD VNet नाम दे देते हैं इसको। सेंट्रल US में तैयार करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर जो हम पहले यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। यहाँ पे हम 192 की IP प्रोवाइड करना चाहते हैं, 192.168.1.0, और यहाँ पे स्लैश करके लेट मी असाइन 25 128 IP एड्रेस मिल जाएगा। और इस IP एड्रेस को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। दो सबनेट चाहिए आपको। द फर्स्ट सबनेट फॉर VM subnet, you can type the name of VM subnet. How much space you want to provide? I wanted to provide 26 दे देते हैं, 26 बार डिवाइड कर देंगे तो 64 IP एड्रेस हमें मिल जाएगा। वन सबनेट इज रेडी। सेकेंड सबनेट किसके लिए? BPN के लिए हम सेकेंड सबनेट बनाना चाहते हैं। आई वांटेड टू क्रिएट अ सबनेट फॉर VPN subnet. How much space you want to provide? 192.168.1.64. How much you want to provide? 26.
Is that okay? Now let me proceed. Once our VNet is ready to use, we'll proceed for the next step. The next step is related to the virtual machine adding. We need to add one virtual machine and one gateway. इसमें हम दो VM ऐड करेंगे और दो VM ऐड करने के साथ साथ virtual gateway भी हम अटैच करेंगे. It is in progress. We have to wait for a few more minutes. VNet is ready to use. Let me proceed and create virtual machine. Any like web 1, the virtual machine that I wanted to create. And you know that if you want to set up your load balancer, so what you need to do, it's mandatory to create a availability set. Is that correct? The prerequisite, you must need to configure the availability set. So let me create one availability set because we wanted to perform the practical of LB. LB set नाम दे देते हैं इसको. No, no, no. इसमें हम दोनों प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं. That's why. क्योंकि फिर एलबी के लिए हमें अलग वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी एंड वी नीड टू परफॉर्म द ऑल टास्क अगेन. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन इन सेम क्लस्टर ताकि हम एलबी का भी पार्ट कंप्लीट कर पाएँ. एंड आफ्टर दैट विल एक्सेस द वर्चुअल मशीन फ्रॉम आवर ऑन प्रोमाइसिस मशीन, वो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू. नेक्स्ट नेटवर्किंग के पार्ट में हम क्लिक करेंगे अपने वीनेट में जो वीनेट क्रिएट किया है. यस, आई वांटेड टू पुट इट इनटू द वीएम वीनेट वीएम सबनेट and proceed to create. Wait for a few seconds. Once our virtual machine is ready to use, we'll proceed for the next option. Exactly. Correct. Correct. Once one virtual machine is ready to use, we'll proceed for the second VM because for the load balancer, it's mandatory we need to configure at least two different virtual machine in the backend.
It is in progress. We have to wait for a few more seconds, and once our uh, setup is ready, means our virtual machine is ready, because in the backend, it is also creating one kind of set, AVD sets, and sorry, uh, the availability set, like as an cluster. So after that, we can proceed with them. One virtual machine is ready to use. Let me create one more VM in same location and same VNet to manage the load balancer services. Also, we'll configure the part of our VPN. Web2 availability set, LB set, and select the virtual machine. Yes, 2016. Provide user ID and password, and make sure the port number 80 and 3389 must be added. So I think in previous we added just only 3389. So no, we can change it, no problem. It will take hardly less than 1 minute. Okay. VM subnet. Yes, I wanted to put our virtual machine in same subnet. It is in progress. We have to wait for a few more seconds. Meanwhile, let me add one virtual desktop, means virtual gateway, because the virtual gateway will take time. So that's why I'm going to proceed, and after that we'll create our LB. You need to search Azure Virtual Desktop. Sorry, you need to search Azure Virtual Gateway. Select the virtual gateway and click Create Gateway. It will ask you कि कौन से सबनेट में आपको रखना है. तो हमने दो सबनेट पहले तैयार कर रखा है. एक सबनेट को एंगेज कर दिया वर्चुअल मशीन्स के लिए,
और दूसरे सबनेट को हमने रखा है किसके लिए, वीपीएन गेटवे के लिए। वीपीएन गेटवे आप इसका नाम दे सकते हैं, वी जस्ट नीड टू टाइप वीपीएन गेटवे। ओके, यूएस लोकेशन, दो डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे हमें, वन इज वीपीएन एंड अनदर इज एक्सप्रेस रूट, राइट। सो एज पर द नेम सजेस्ट, बेसिकली एक्सप्रेस रूट इनका खुद का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का प्रोडक्ट है। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज यूज ऑफ एक्सप्रेस रूट? एज पर द डॉक्यूमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये कहते हैं कि आप वीपीएन की जगह पे एक्सप्रेस रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सप्रेस रूट आपको हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एक्सप्रेस रूट आपको व्हाट वी कैन से दैट हाई डेटा ट्रांजैक्शन स्पीड प्रोवाइड करेगा। एक्सप्रेस रूट इज बेटर देन द वीपीएन। लेकिन अगर हम अपने टेक्निकल एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस की बात करें, तो दिस इज द न्यू इन द मार्केट। मोस्टली पीपल, मोस्टली कंपनीज प्रिफर टू सेटअप प्रिफर टू सेटअप VPN, प्रिफर टू सेटअप VPN। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि VPN हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं VPN टास्क पे। सो कंपनी नीड टू मेक अ कम्युनिकेशन यूजिंग VPN इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सप्रेस रूट। Lack of confidence, lack of you can say that uh, what we can say that means उतना ज़्यादा ट्रस्ट ना होने की वजह से we can use this particular option, the VPN। एक्सप्रेस रूट बहुत कम ही यूज किया जाता है। हाँ, एक्सप्रेस रूट कॉस्टली है, ओनली बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी और एडिशनल टास्क प्रोवाइड करते हैं। AVD VNet, select the subnet। ओके, सो वी आर अनएबल टू फाइंड द सबनेट्स। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिएट वीनेट की बात कर रहा है, सबनेट अवेलेबल नहीं है। तो वर्चुअल नेटवर्क करंटली सिलेक्टेड सब्सक्रिप्शन एंड रीजन लिस्टेड। ठीक है, हम यूएस में हैं, सेंट्रल यूएस में है, ये हमारा सब्सक्रिप्शन है, एवरीथिंग इज ओके, बट वी आर अनएबल टू फाइंड द सेकेंड सबनेट। लेट मी चेक। We just created, so that's why we need to refresh the page। Only the virtual network is currently selected, subscription and region are listed, already created।
both subnets are available. एक VM subnet है, दूसरा VPN subnet है. Unavailable the entire IP address is. Okay, so sometime if you feel like एक बार और हम ट्राई करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली यहीं से तैयार कर लेंगे. ठीक है, सो लेट मी ट्राई टू चेक द, लेट मी ट्राई टू एक्सेस द एग्जिस्टिंग गेटवे जो हमने बनाया वर्चुअल गेटवे. अगर वो एक्सेस होता है तो ठीक है, अदरवाइज विल क्रिएट डायरेक्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. But it's just giving a different. Okay, let me proceed. Maybe it will create, but we need to provide the subnets. ठीक है, let me try to check VPN IP. I don't want to proceed with the availability set or zone. Create a second VPN IP address. Hmm. We provided the VNet, so maybe it will create their own subnet or या फिर कोई ना कोई error आ जाएगा. SQ SQU is the basically stock keeping unit that help us to identify the capacity. कौन सा नंबर? नहीं, वो ऑटोमेटिक आता है, वो ऑटोमेटिक आता है, बट वी हैव ऑप्शन टू चेंज इट. हम उसको चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं. हाँ, गेटवे की प्रॉब्लम है बिकॉज द सब्सक्रिप्शन गेटवे नॉट फॉर प्लीज. ओके. No problem. Let me try to create subnet separately, gateway subnet.
our subnet is not identifying in this particular location, so I need to change the subscription. But do one thing, we already created two different virtual machine, so let me create the load balancer and give you the steps how we can manage the inbound and outbound. जो गेटवे की सॉरी लोड बैलेंसर की चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन में मैंने गलती से दूसरा 98 वाला सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया जिसमें ऑथराइज नहीं कर रहा है. सो आई क्रिएट इसको, ये कंप्लीट करने के बाद विल डिलीट इट एंड क्रिएट अ न्यू वीनेट. डाइनेट एक्चुअली मुझे ना ये इसमें तैयार करना था 46 वाले में, सो दैट्स वाई आई एम एनेबल टू यूज़ इट. चलो अभी तो हम एल देख लेते हैं. टेस्टिंग लोड बैलेंसर, राइट. एंड सेंट्रल यूएस स्टैंडर्ड हम यूज़ करना चाहते हैं, पब्लिक यूज़ करना चाहते हैं बिकॉज आई वांटेड टू एक्सेस द वेब सर्वर्स फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क. Front end IP, we have already talked about the front end IP. The work of front end IP can assign the public IP for LB. Public IP for LB. We don't have an existing public IP address. I wanted to create new public IP and add it. सेकेंड स्टेप में अपने जो इंस्टेंसेस तैयार किए हैं उन इंस्टेंसेस को ऐड करना है लोड बैलेंसर के अंदर, बैकएंड पूल के अंदर. वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट एवीटी जो हमारा लोड बैलेंस जो हमने वीनेट तैयार किया था. यहाँ पे बोथ मशीन मस्ट बी अवेलेबल इन सेम अवेलेबिलिटी सेट. अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली वी आर इनेबल टू ऐड द वर्चुअल मशीन. वीएम सर्वर यहाँ पे हमने नाम दे दिया एंड सेव इट. नेक्स्ट पॉइंट है इनबाउंड रोल. हाँ वो विल मैनेज इट, वो हम कभी भी एनएसडी में जाकर के ना चेंज कर देंगे तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड नाउ वी आर एबल टू फाइंड two different types of role. One is inbound and another is outbound. नेट हम सेपरेट कॉन्फ़िगर करेंगे. अभी हम इनबाउंड में एक रोल असाइन करेंगे. वन पोर्ट वी नीड टू ऐड एज वी नो दैट, जो कि पोर्ट नंबर 80 होगा, क्योंकि वी नो दैट इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों हमने कॉन्सेप्ट देखा था और इनबाउंड आउटबाउंड के केस में हमने सक्सेसफुली असाइन किया था डिटेल, राइट. जिसमें इनबाउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बाहर से यूजर्स जो आते हैं उनको एक्सेस असाइन करना, एंड आउटबाउंड अपने खुद के यूजर्स को चेक करना. इंटरनेट खुद से इंटरनेट को एक्सेस करना. करेक्ट. नेक्स्ट आउटबाउंड. आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर द आउटबाउंड क्योंकि इसमें हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. वंस अवर एलबी इज रेडी टू यूज, लेट मी गिव यू द डिटेल नेट रूल क्यों तैयार किया जाता है. Now let's try to manage the services of LB.
वेबसाइट अगर हमने बैकएंड में कॉन्फ़िगर की है तो उस वेबसाइट को हम एक्सेस कर पाएंगे. सो फर्स्टली वी जस्ट नीड टू टेक द आरडीपी ऑफ आवर वर्चुअल मशीन्स और उसमें एक डमी वेबसाइट तैयार करते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पज. Okay, installation is in progress. We have to wait for a few more minutes and back to the portal. Basically, we have already completed the part of our load balancer, right? We already discussed about the our responsibility to understand about the concept of NAT rule. तो अभी हम लोड बैलेंसर की प्रॉपर्टीज पे हैं एंड अंडर द लोड बैलेंसर प्रॉपर्टीज NAT rule. लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ NAT rule. बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि जब भी हम कोई इंस्टेंस तैयार करते हैं, जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल वी एडेड टू डिफरेंट वर्चुअल मशीन इन द बैक एंड ऑफ लोड बैलेंसर. ये हमारा लोड बैलेंसर है और इस लोड बैलेंसर के बैकएंड में हमने दो इंस्टेंसेस को, दो वर्चुअल मशीन को ऐड कर रखा है, VM1 एंड VM2. अब इस केस में जो what we can say that
पब्लिक आईपी एड्रेस है लोड बैलेंसर की, वो सेपरेट रहेगी। वर्चुअल मशीन की पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो सेपरेट रहेगी। It means that in current situation we are using, I think, uh, three different public IP address हम कंज्यूम कर रहे हैं. You have to pay the amount for the public IP address. ठीक है ना, उसके लिए हमें डेफिनेटली पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ IP address that we are using. नेट रूल कम इन टू द पिक्चर. नेट रूल क्या कहता है कि नो वरी अबाउट इट, आप ये दो पब्लिक आईपी एड्रेस को रिमूव कर सकते हो. नो नीड टू प्रोसीड विद दीज टू डिफरेंट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस. आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे नेट रूल कॉन्फ़िगर करना होगा. और नेट रूल क्या करेगा, जो आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, उस प्राइवेट आईपी एड्रेस को लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ मैच करा देगा. ठीक है, और आप एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस से बाय यूजिंग द सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस दोनों इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएंगे एट अ सेम टाइम. पब्लिक आईपी एड्रेस से नॉट ओनली द टू वर्चुअल मशीन, जितने भी वीएम आप यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, उन सभी वर्चुअल मशीन को आप आसानी से आरडीपी के थ्रू एक्सेस करा पाएंगे. क्लियर? हाँ, ओके, उसके लिए हम पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे कि किसी को भी रैंडम पोर्ट दे दिया, वो PC1 हो गया, रैंडम पोर्ट दे दिया, वर्चुअल मशीन 2 हो गया, तो ऐसे हम एक रैंडमली पोर्ट नंबर असाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम चीज़ों को मैनेज करेंगे. इज दैट फाइन? चलो नेट रूल पे आ जाते हैं हम यहाँ पे. अंडर द नेट रूल वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर, टाइप द नेम ऑफ नेट रूल, टेस्ट नेट रूल, कोई सा भी नाम दे देते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. किसके लिए नेट रूल बनाना है, बैक एंड पूल के लिए या वर्चुअल मशीन्स के लिए? सो आई वांटेड टू क्रिएट द नेट रूल फॉर द वर्चुअल मशीन्स, जो हमारी वीएम है उनके लिए नेट रूल. दोनों के लिए, दोनों के लिए बन जाएगी. हम्म, यहाँ पे आपको दोनों इंस्टेंस की डिटेल आ जाएगी. पहले हम इससे जाएंगे, वेब 1 को जाएंगे. दिस इज़ द वर्चुअल मशीन 1, और इसमें इसकी आईपी एड्रेस प्राइवेट की सेलेक्ट करेंगे, और फ्रंट एंड की आईपी एड्रेस, दिस इज द पब्लिक आईपी एड्रेस. किसका? पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ लोड बैलेंसर का, राइट, वीएम का. और फ्रंट एंड पोर्ट, इसमें हमें पोर्ट मैनेज करना पड़ेगा. द फ्रंट एंड पोर्ट में आप कोई भी रैंडम पोर्ट लाइक 77 हमने 7575 एक असाइन कर दिया, जिससे ये आइडेंटिफाई होगा कि आप VM1 को एक्सेस करना चाहते हो, राइट. और टैगिंग में RDP सेलेक्ट कर लीजिए, राइट. बैकएंड पोर्ट में 3389 यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं. इज दैट फाइन? सॉरी सॉरी सॉरी, 7575, और यहाँ पे जाएगा फ्रंट एंड आईपी, फ्रंट एंड पोर्ट में 3389, यहाँ पे बैक एंड पोर्ट में 7575 जो सेग्रीगेट करेगा. क्लियर? टेस्ट रूल टेस्ट नेट VM1 ऐड कर दिया. नहीं नहीं नहीं, फ्लोटिंग वगैरह नहीं. कोई सा भी दे दिया, रैंडम, 4 डिजिट का, 2 डिजिट का, 6 डिजिट का.
ठीक है, एक नेट पोर्ट हमने अटैच कर दिया, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो पहला वीएम है वो हम एक्सेस कर पाएंगे। एज इट इज नेट टेस्ट नेट VM2। फ्रंट एंड आईपी, हाँ ये दूसरे वीएम के लिए। 6565। एग्जैक्टली यस। नहीं नहीं, पब्लिक आईपी एक ही रहेगी ना। हमने केवल जो 7575 और 6565 मेंशन किया ना, उसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे। हाँ, एलबी की आईपी एड्रेस से जाएंगे। करेक्ट। लेट मी ट्राई टू एक्सेस MSTSC, और यहाँ पे हम पब्लिक आईपी एड्रेस अपने एलबी का प्रोवाइड करने वाले हैं, ना कि, अब देखिए दोनों मशीन में सेम आईपी एड्रेस आ रहे हैं। 2898 176 203। यस।
ठीक है, यहाँ पे हमने एलबी की पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस किया एंड मशीन की आईपी एड्रेस को हम आई डोंट वांट टू यूज द वर्चुअल मशीन आईपी एड्रेस। यहाँ पे अगर हम वीएम की बात करें तो वीएम हमारा सेपरेट आईपी एड्रेस कंटेन करके रखा है। नेट रूल बनाने के बाद पोर्ट नंबर 3389 एक्टिवेट करने के बाद नो नीड टू यूज, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस 172 से स्टार्ट हो रही है और हमने जो एक्सेस किया है वो 20 से स्टार्ट हुई है आईपी एड्रेस। दोनों वर्चुअल मशीन की आईपी एड्रेस आई थिंक 172 से स्टार्टेड है, 172.2.2.202 एंड 74.244 समथिंग करके। हम्म अच्छा, पब्लिक आईपी एड्रेस हमें रिमूव करना है, डेफिनेटली हम जैसे ही एक्सेस कर पाएंगे आप वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, नेटवर्किंग के केस में जाएंगे एंड डेफिनेटली यू नीड टू ओपन द पोर्ट ऑफ इथरनेट। इथरनेट का जो कार्ड है उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। इथरनेट प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद सिंपल सा आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द आईपी एड्रेस, ठीक है। यहाँ से हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के पैनल पे जाएंगे एंड public IP address, this is our public IP address, right? So हाँ, we just need to deassociate। अनचेक करेंगे और बाद में डिलीट भी करना पड़ेगा। अभी जैसे यहाँ से अनचेक कर दिया ना, अभी आपका चार्जेस तो कम लगेगा क्योंकि आप इससे ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, बट आपको पब्लिक आईपी एड्रेस रिमूव करना पड़ेगा। और पब्लिक आईपी एड्रेस का नेम आपको याद रखना है कि जो आपने अनअसाइन किया है या अनएसोसिएट किया है अपनी वीएम से, उसका नेम भी आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप उसको रिमूव कर पाओ। ना वो हम चेक कर लेंगे, अभी हमने रिमूव किया। अब आप यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस चेक करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस है। ये लिस्ट बता देगा हमें। ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस पे जाएंगे ना, सो इट विल गिव यू द नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस जो हमारे पास। आप देखिए मल्टीपल आईपी एड्रेस है। सो वेब 1 या वेब 2 का हमने डिलीट किया है, राइट। ने पब्लिक आईपी एड्रेस तो एलबी का प्रोवाइड किया है, तो ये हमारे पास जो है एडिशनल आईपी एड्रेसेस हैं। सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद देम, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, जो आपने अनएसोसिएट किया है ना वो डिलीट हो जाएगी, जो एसोसिएटेड है वो डिलीट नहीं होगी। सिंपल सा फंडा है ना, क्योंकि वो बोलेगा कि ऑलरेडी इन यूज। हम्म 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 हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ना व्हाट वी कैन से दैट एक तरीके से थ्रेशोल्ड है और एक लिमिट दिया है, क्योंकि उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कोटा मैनेजमेंट। हम्म। हम्म रिकवरी सर्विस वॉल्ट आई डोंट थिंक मैंने क्रिएट किया है, नहीं 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 क्रिएट किया है। मैं समझ, हाँ आपने कोई ना कोई वर्चुअल मशीन का बैकअप लेने की कोशिश की होगी। नहीं 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 नहीं, रिकवरी सर्विस वॉल्ट ऐसे डिलीट नहीं होता। रिकवरी सर्विस वॉल्ट के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बैकएंड में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, बैकएंड में जाके आपको स्टॉप करनी पड़ेगी बैकअप की सर्विसेज। हम्म
हाँ, बैकएंड पूल के साथ क्या होगा ना, बैकएंड पूल के केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं। और ऐसे आप नेट में वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करेंगे तो जो वर्चुअल मशीन लोड बैलेंसर के बैकएंड में भी नहीं है उनको भी आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम्म। करेक्ट 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 करेक्ट। बट उसमें इंडिविजुअल जैसे आपने 5 मशीनें बनाई, आप पांचों को नहीं ऑथराइज करना चाहते हैं, आप सिर्फ 2 को देना चाहते हैं या 1 को देना चाहते हैं। और एलबी के केस में क्या होगा, जब आप बैकएंड पूल सेलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी सारी वर्चुअल मशीन्स आ जाएंगी, वो नहीं देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के लिए आप ऑथराइज करना चाहते हैं। करना पड़ेगा। हम्म। करेक्ट करेक्ट। नहीं, उसके लिए अलग अदर सर्विसेज के लिए होता है ना, अदर सर्विसेज जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं नेट रूल। इट्स नॉट मैंडेटरी ना कि केवल आरडीपी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेट का इस्तेमाल हम कई सारी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिक्वल इस्टेब्लिश किया है, उस सिक्वल को एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर आपने कोई ऐसी कॉमन सर्विस इंस्टॉल की है जो हर एक वर्चुअल मशीन पे है, उसको आप डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं, तो यू कैन प्रोसीड विद दिस। हाँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली वेब सर्वर के केस में ये क्लस्टर में होने की वजह से ना हर एक वर्चुअल मशीन जो है सेम सर्विसेज को कंटेन कर रहती है। आरडीपी लेने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जब भी कोई इश्यूज आएंगे, ठीक है ना, जब भी कोई इश्यूज आएंगे उस केस में हमें आरडीपी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज नो नीड। ठीक है। ये अपने पास नेट की बात हो गई, और नेट के केस में क्या हो गया, हम नॉट ओनली द आरडीपी, आप नेट का इस्तेमाल और भी अदर टास्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। इन द लोड इन द लोड बैलेंसर। आईपी प्रीफिक्स पब्लिक आईपी एड्रेस की डिटेल है, नेट जितने कॉन्फ़िगर किए हैं उनकी डिटेल्स है। सेशन परसिस्टेंस, ओके। यहाँ पे आप क्लाइंट, आईपी एड्रेस एंड प्रोटोकॉल, एंड यू कैन ऑल्सो असाइन द इंडिविजुअल क्लाइंट।
means according to the protocol that you configure in the backend of your client means machine, वो आपका applicable हो जाएगा. अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट आईपी एड्रेस देना चाहते हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट वो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा. हम्म. चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको प्रैक्टिकली. ठीक 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 है, ठीक है. नेट रोल कर लिया, लोड बैलेंसर. बीपीएन का हम प्रोसीड करते हैं. बीपीएन के लिए वी जस्ट नीड टू क्रिएट द बीपीएन रोल. बीनेट तैयार करते हैं, उसमें 2 सबनेट बनाते हैं एंड देन प्रोसीड. फाइन. सो इसको हम कल ही करेंगे बिकॉज आई नीड टू क्रिएट इट. और इसको हम कल कर लेंगे. सो एक छोटा सा ब्रेक ले लें 10 मिनट का, देन कनेक्ट.